Hello students, welcome back. Welcome back in the language and writing classes in which I'm presenting you. I was presenting you a notice chapter which I had proceeded after advertisement. In it we have studied in the last two lectures we have studied the types of notice and the details required for it, for the notice writing, and the format we have studied. Okay, we have studied also the marking scheme, but as per the new schedule, I really apologize my mistake. As per the new scheme, marking scheme, the things got changed totally. Okay, and in a lecture, in a lecture, when I'm just going to I'm very soon going to give you a detailed explanation of your syllabus, so I'll tell you everything, don't worry. Then after students, we have studied the type 1 notice for meeting, and after it we have just seen the type 2 of notice for events. In it I also told you already the exercise, a solution of it. Right now students, let's talk about the third type of notice. Okay, notice for lost and found. स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लास्ट कुछ महीने से कंटिन्यूअस स्टडीज़ कर रहे हैं और वी आर मूविंग फॉरवर्ड with our syllabus. So in it we are advancing our lectures. Let's move and advance our lectures toward the third type of notice for lost or found. Okay, so the details required for it. Now let us talk about the details required for it. Okay, so the details that required for it. Okay, name of the object lost or found. Okay, the important thing is name of the object. First one is, if we talk about, the first thing is, okay, the first thing is name of the object lost or found. Okay, name of the object lost or found. So कौन सी ऑब्जेक्ट लॉस्ट हुई है, कौन सी फाउंड हुई है, उस चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में डिटेल आपको देना पड़ेगा. ओके, द डिटेल्स रिक्वायर्ड इन इट. द फर्स्ट वन इज़ नोटिस of the object lost or found. The second thing is the second thing, which is date, time, and day when you lost or found it. Okay, next thing you have to provide here is the date, time, day when you lost found it. आपको ये मेंशन करना होगा कि किस दिन, किस समय, कितने बजे आपका ये जो ऑब्जेक्ट है जो आपने लॉस किया है वो कहाँ पे कहाँ मिला या पाया गया या खोया. ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ नेक्स्ट थिंग प्लेस वेयर यू लॉस्ट. ओके, उसके बाद आप प्लेस मेंशन करेंगे जहाँ पे आपने इसको खोया या पाया, उसके बारे में मेंशन करेंगे. फिर आगे बढ़ेंगे एक और, उसमें आप बात करेंगे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. उसके बाद आप एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे. आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कोई कुछ होगा इफ़ एनी, तो उसको आप प्रोवाइड करेंगे. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स. ओके, उस ऑब्जेक्ट के बारे में जो खोया पाया है उसका आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ जिससे कि उसकी रिकग्निशन पॉसिबल हो सके. नेक्स्ट आफ्टर you have also to provide whom to contact. okay, अगर वो चीज़ें जो गुम हुई हैं मिल जाए या फिर खोया पाया की कंडीशंस में whom to contact and when and where to contact. ठीक है, कि किससे, कहाँ और कैसे कांटेक्ट करना है, ये डिटेल भी आपको प्रोवाइड करनी होगी. फर्दर इसके बाद आपको एक और डिटेल देनी पड़ेगी, a suitable gift reward for the person who returns. Okay, in case if the things are found
what suitable gift or reward as a temptation you are going to provide to the person who returns it. Okay, उस व्यक्ति को आप कौन सा सुटेबल गिफ्ट या रिवॉर्ड देने जा रहे हैं उसको भी मेंशन कीजिए, बिकॉज दिस इज़ अ टास्क ऑफ टेम्पटेशन. अगर हम टेम्प्ट करेंगे, लोगों को लालयित करेंगे, तभी लोग जो है अगर पाते हैं तो उसको हमारे पास लाके पहुंचाते हैं. व्हेन दे फील दैट समथिंग दे गोना गेट in anticipation of it. Okay, so like this. The next thing is, students, the next one is contact persons, contact person, designation, class, address or phone number, everything you have to provide here. Okay, आपको कॉन्टैक्ट जो है उस पर्सन का, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी क्लास, एड्रेस, फ़ोन, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होगी. Got it? These all are the informations which needed here under in this. Right now let us move further and talk about the example of it. Okay, one example I have taken from the unsolved unsolved section or the unsolved questionnaire, और उसका एक सेक्शन में यहाँ लेके हाजिर हूँ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, यू आर सुभाष सुनीति, you have lost your history textbook somewhere in the school premises. Put a notice giving a description of the book and requesting the finder to return to it. Okay, so this is the question कि आप सुभाष या सुनीति हैं, आपकी एक हिस्ट्री टेक्स्ट बुक जो है गुम हो गई है स्कूल के प्रेमाइसिस में ही. प्रेमाइसिस मीन्स स्कूल के प्रॉपर्टी में ही कहीं पे ना. तो आपको एक नोटिस देना है उसकी फुल डिस्क्रिप्शन देते हुए बुक की ना, जैसे कि एंड रिक्वेस्टिंग एंड द फाइंडर टू रिटर्न फ्रॉम इट, और कोई पाता है तो उसे रिक्वेस्ट करना है कि वो उसे वापस दे दे. ओके, ऑलराइट, मूविंग फर्दर, इसका सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स. जो नोटिस का मैंने फॉर्मेट लिखाया है, फॉर्मेट वगैरह वही सब चीज़ें हैं, आपको उसी फॉर्मेट पे लिखना है. फर्स्ट आप लिखेंगे इस इंस्टीट्यूशन का नेम, XYZ पब्लिक स्कूल प्रयागराज, देन आफ्टर नोटिस एंड देन द डेट. उसके बाद क्या करना है कि आपको डेट प्रोवाइड करनी है. ओके, आपको वो डेट प्रोवाइड करनी है जिस डेट पे आपको वो जिस डेट पे वो लिखा गया है उसकी डेट प्रोवाइड करेंगे आप. ठीक है, और उसके बाद फिर हेडिंग की बात, इसके बाद फिर हम लोग हेडिंग की बात करते हैं कि हेडिंग क्या इसका होगा. ओके, फिर इसकी हेडिंग के बारे में बात करेंगे कि इस हिस्ट्री टेक्स्ट बुक लॉस्ट, ये हो गई हेडिंग. ठीक है, नाउ लेट अस मूव फर्दर और देखते हैं कि किस तरह से हम इसको एक्सरसाइज करेंगे. ऑल आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड. ओके, दैट स्टार्टिंग आपको ऐसे करनी है, चाहे लॉस्ट हो चाहे फाउंड हो, दोनों में. ऑल आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट अ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक वॉज lost today at around morning assembly from the school's playground. It is a black covered book. Okay, अब आप इसका डिस्क्रिप्शन देंगे. पहले तो आप where, when and how it lost you would mention them all. Then after you would mention the description or the brief description about the lost thing. It is a black covered book. Okay, and a sticker by my name onto it. उसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है मेरे नाम का. It is class 12th history textbook. Anybody, अब उसके बाद आप रिक्वेस्ट करेंगे to the finder. Anybody who finds it is requested to inform undersigned. Okay, कोई भी अगर इसको पाता है तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो अंडरसाइंड एड्रेस पे या नेम पे या डेजिग्नेशन पे आप कांटेक्ट करें और फ़ोन और लीव इट विद द प्रिंसिपल, या फिर आप इसको फ़ोन करिए हमें या इसको आप दे दीजिए विद द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल. ओके, उसके हाथ में, उनके हाथ में आप प्रोवाइड कर दीजिए. फर्दर ये कहा जा रहा है द पर्सन रिटर्निंग इट टू मी विल बी हैंडसमली रिवॉर्डेड. यहाँ रिवॉर्ड का भी डिस्क्रिप्शन किया गया है कि जो कोई इसको मुझे लौटाएगा उसको बहुत अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा. Then after you would introduce yourself, Suniti, class 12A, like this. Okay,
This is what the format of writing lost and found type of notice. Moving further, next see the next the fourth type of notice. नेक्स्ट जो आपका नोटिस है वो है फोर्थ टाइप ऑफ नोटिस. यहाँ हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि इसका फोर्थ टाइप ऑफ नोटिस क्या है. ओके, सो ये फोर्थ टाइप का नोटिस है जो हम लोग यहाँ पढ़ने चल रहे हैं. टाइप 4, नोटिस फॉर टूर्स, फेयर्स, सॉरी, नोटिस फॉर टूर्स, फेयर्स, एग्जीबिशन, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, डिबेट, ग्रुप टॉक, इन सब के लिए नोटिस लिखना. दिस इज़ द फोर्थ टाइप ऑफ नोटिस कि इन सब के लिए आप कैसे नोटिस लिखेंगे. ओके, व्हाट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड, सी हियर. सो डिटेल्स दैट आर रिक्वायर्ड हियर, सो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी वो देखते हैं हम लोग. नेम एंड नेचर ऑफ इवेंट. पहले आपको प्रेजेंट क्या करना है, नेम एंड नेचर ऑफ इवेंट, कि किस तरह का इवेंट है उसके बारे में बताएंगे, उसका नेम एंड नेचर. ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव पर्पस या ओकेज़न क्या है. सब्जेक्ट ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का सब्जेक्ट क्या है. हु कैन पार्टिसिपेट और अटेंड, कौन पार्टिसिपेट या अटेंड कर सकता है. एक्सपेंडिचर और एंट्री फ़ी क्या है. स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस क्या हैं. इन सब की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होगी. ओके, एक्सपेंडिचर्स, एंट्री फ़ी, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इफ़ एनी अगर है तो वो प्रोवाइड कीजिए. कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, सब्जेक्ट ऑफ द प्रोग्राम क्या है, ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है, नेम क्या है. उसके बाद और डिटेल्स देनी होती है. नेचर, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइज़र, ऑर्गेनाइज़र का नाम क्या है, डेट, टाइम, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम ये क्या है. प्लेस, वेन्यू एंड डेस्टिनेशन, कि उसका प्लेस क्या है, वेन्यू किस जगह पे होगा वो आयोजन, उसका आयोजन कहाँ होगा, एंड डेस्टिनेशन क्या है. ये सब, और ये सब एक ही चीज़ है लेकिन इनके बारे में डिटेल्स पूछ सकते हैं. इसमें आप लिख सकते हैं स्पीकर्स, चीफ गेस्ट, स्पीकर कौन होगा जो प्रोग्राम को इनाग्रेट करेगा, चीफ गेस्ट कौन होगा. ठीक है, इन सब की डिटेल्स हैं. इनाग्रेशन एंड कंक्लूजन से जुड़ी हुई कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप सेंड करें, उसमें राइट करेंगे. देन आफ्टर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर आप क्या करेंगे, आप उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखेंगे. अगर उसका कॉन्टैक्ट डिटेल है तो आप उसको मेंशन करेंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेमिनार, डिबेट, ग्रुप टॉक और इस तरह की नोटिस में, या फेयर, टूर्स, एग्जीबिशन, स्कूल्स में टूर होता रहता है, फेयर्स होता रहता है, मेले वगैरह लगते रहते हैं, एग्जीबिशंस लगते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और सेमिनार्स होते हैं, डिबेट होता है, ग्रुप टॉक होता है. इनसे जुड़े कोई भी चीज़ें हैं तो उस पर आप एक नोटिस कैसे लिखेंगे उसका एक लीवल एग्जाम्पल यहाँ पे है. और कल इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इस पर डिस्कस करेंगे कि इसके और भी फॉर्मेट या इसके बाकी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, कि इसको कैसे राइट किया जाता है उसका एक सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा. होप दिस वीडियो इज़ वेरी फ्रूटफुल, वेरी हेल्पफुल फॉर यू. With these words, I'm just ending my words. Thank you. Have a good day.